وزیر اعظم محمد شہباز شریف پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے پر روانہ۔ روانگی سے قبل اور فضائی جہازی کے دوران چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کی ملک میں مجموعی سیلابی صورتحال پر وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ۔ پنجاب کے دریاؤں پر طغیانی اور زیر آب علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر بھی بریف کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف بھی لاہور سے وزیر اعظم کے ہمراہ ناروال روانہ۔ دوران سفر سیلابی صورتحال پر گفتگو۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے بریف کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیتے ہوئے سیلابی صورتحال سے بچاؤ اور ریلیف آپریشن میں تمام ضروری اقدامات کی ہدایات جاری کی۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو ناروال میں تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔ درائے چناب میں ہیڈ قادرآباد میں پانی کے دباؤ میں مسلسل اضافہ۔ پانی کا بہاؤ 9,96,000 کیوسیکس، صلاحیت 8 لاکھ کیوسیکس، تقریباً 2 لاکھ کیوسیک پانی اضافی۔ بائیں جانب پانی کے دباؤ سے بند ٹوٹنے کا خدشہ۔ حافظ آباد اور چنیوٹ کے علاقے شدید متاثر ہوں گے۔ ڈپٹی کمشنرز کو شہریوں کے فوری انخلاء کی ہدایات جاری۔ بند کو مضبوط بنانے کے لیے تمام تر وسائل اور کوششیں بروئے کار لائی جا رہی ہیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا۔ بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں شدید سیلاب۔ خانقی کے مقام پر انتہائی خطرناک اونچے درجے کا سیلاب۔ پانی کا بہاؤ 8,59,000 کیوسک۔ دریا چناب میں مرالہ کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ پانی کی آمد 1,91,000، اخراج 1,85,000 کیوسک۔ چنیوٹ میں اونچے درجے کا سیلاب۔ دریا چناب میں اس وقت 4.5 لاکھ کیوسک کا ریلا چنیوٹ سے گزر رہا ہے۔ پانی کی رفتار اور مقدار میں تیزی سے اضافہ۔ بڑا سیلابی ریلا آج چنیوٹ سے گزرے گا۔ ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ محکمے ہائی الرٹ۔ عوام، املاک اور جانوروں کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری۔ سرگودا کی تحصیل کوٹ مومن میں انتہائی اونچے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ پاک فوج، ریسکیو 1122، پولیس اور ضلعی انتظامیہ متحرک۔ 40 سے زائد گاؤں میں لوگوں کے انخلاء کا عمل جاری۔ عوام سے الرٹ رہنے اور متعلقہ اداروں سے تعاون کی اپیل۔ دریا راوی میں جرسر کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ پانی کا بہاؤ 1,39,000 کیوسیکس۔ شادرہ کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ پانی کا بہاؤ 1,55,000 کیوسیک۔ بلوکی ہیڈ ورکس پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال۔ پانی کا بہاؤ 93,000 کیوسیکس ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی خطرناک اونچے درجے کا سیلاب۔ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,61,000 کیوسک۔ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب۔ سلیمانکی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,09,000 کیوسک۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے۔ قصور دریا ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ 72 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے۔ ضلعی انتظامیہ پولیس کے جوان سیلاب زدگان کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے میں مصروف۔ ہیڈ صافن میلسی پر نچلے درجے کا سیلاب۔ مقامی آبادی کے لیے مشکلات۔ حفاظتی بند ٹوٹنے اور پانی کے پھیلاؤ نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا۔ پسرور میں نالا ڈیک میں 22,000 کیوسک کی گنجائش۔ 60,000 کیوسک کا ریلا گزر چکا۔ امیشا کے قریب نالا ڈیک میں 60 فیٹ گہرا شگاف پڑ گیا۔ درجنوں دیہات زیر آب۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی دھان کی فصل کو نقصان۔ نقصانات کو کم کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کا ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ سیلابی صورتحال میں پی ٹی وی نیوز کا مؤثر کردار۔ پی ٹی وی نیوز قومی ذمہ داری نبھاتے ہوئے فرنٹ لائن کوریج دے رہا ہے۔ ملک بھر سے نمائندے دریاؤں کی صورتحال سے باخبر رکھے ہوئے ہیں۔ براہ راست لمحہ بلمحہ رپورٹس فراہم کی جا رہی ہیں۔ متاثرہ عوام کی آواز مؤثر انداز میں حکومت تک پہنچائی جا رہی ہے۔ ریسکیو آپریشنز اور انتظامیہ کی سرگرمیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں ذمہ دارانہ صحافت کے ساتھ پی ٹی وی نیوز پیش۔
मॉनसून बारिशों का 9वां स्पेल कल से शुरू होगा। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफ़ानी बारिशों के पेश गोई। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चुकवाल, जेहलम, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के। डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ज़िले इंतज़ामिया को अलर्ट जारी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में बारिशों का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। वादी में बारिश से दरियाओं के बंद टूट गए, मुतादिद पुल और सड़कें बह गईं। मोबाइल, इंटरनेट और टेलीफोन सर्विसेज बंद। तमाम तालीमी इदारे आज भी बंद रखने का ऐलान। दरिया जहलम में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर चली गई। मकबूजा जम्मू में हलाकतों की तादाद 37 हो गई। करतारपुर पर भारत का पानी छोड़ना आबी जारहियत करार। गुरुद्वारा में 5-5 फीट पानी जमा। भारत को मालूम था कि इस तरफ गुरुद्वारा है, जानबूझकर पानी छोड़ा गया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने साबित किया कि वो सिखों का दुश्मन है। ज़रूरी हो चुका है कि हम खालिस्तान की आज़ादी के लिए कोशिश करें। सिख रहनुमा कुलविंदर सिंह चीमा की भारत की आबी जारहियत पर कड़ी तनकीद। जर्मन वज़ीर ख़ारजा जोहान वेडफल का नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात का नया बाब। SAFC की काविशों से पाकिस्तान और वस्ती एशिया के दरमियान तजारती ताल्लुकात में नहीं रहे हमवार। उज़्बेक सफारतकार ओबेक कम्बारोव का मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। टेक्सटाइल, पोल्ट्री, फूड प्रोसेसिंग और लेदर इंडस्ट्रीज़ का भी दौरा किया। पाकिस्तानी मयार और जिद्दत को सराहा। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की तजारत $122 मिलियन से बढ़कर $404 मिलियन तक जा पहुंची। आइंदा बरसों में बाहमी तजारत को $2 बिलियन तक बढ़ाने का हदफ। भारत में बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिसियों के तहत मुसलमानों का इस्तेहसाल और नस्ल कुशी जारी। आसाम में बंगाली नजात मुसलमानों को जमीन से बेदखल करने की रियासती मुहिम तेज। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की जानिब से आसाम में जबरी बेदखली और मुस्लिम मुखालिफ मुहिम की रिपोर्ट पेश। बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे ने आसाम को खौफ और नफरत की सरजमीन बना दिया। आसाम हिंदू अक्सरियती तसल्लुत की तजर्बेगाह में तब्दील। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट। मार्का हक में शिकस्त के बाद भारतीय फौजी क़यादत में इख्तलाफात और तकसीम खुलकर सामने आ गई। बीजेपी की सियासी मदाखलत ने भारतीय फ़ौज को पेशा वाराना बुनियादों से महरूम कर दिया। थिएटराइजेशन के नाम पर तीनों भारतीय फ़ौज के दरमियान ताकत की कशमकश तेज। दिल्ली में मुश्तरका मनसूबाबंदी और राबताकारी मरकज़ का होना ज़रूरी है। भारतीय एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल की बमबारी से 50 फ़लस्तीनी शहीद। भूख की वजह से मजीद 10 अफराद जान की बाजी हार गए। गजा में 5 लाख लोगों को खुराक की कमी का सामना है। बच्चे भूख से बिलख कर मर रहे हैं। इसराइल ने बंद रास्ते न खोले और इमदाद न पहुंची तो कह से नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम और इमदादी इदारों का सलामती काउंसिल में इंतबा। गाज़ियान वतन को सलाम। सिपाही मकबूल हुसैन की 7वीं बरसी। मकबूल हुसैन ने वतन की मोहब्बत में वो कर दिखाया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। 1965 की जंग में सिपाही मकबूल हुसैन ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। 20 अगस्त 1965 को जख्मी हालत में सिपाही मकबूल हुसैन को भारतीय फौज ने गिरफ्तार कर लिया। दौरान गैर भारतीय फौज ने सिपाही मकबूल हुसैन पर बदतरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया। हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र। वतन अजीज़ के लिए जान का नजराना देने वाले शोहदा को सलाम। इकलौते बेटे कैप्टन तैमूर हसन शहीद की शहादत पर बहादुर वालिद ब्रिगेडियर हसन अब्बास के हौसले बुलंद। अगर मेरे 10 बच्चे भी और होते तो मैं फ़ौज में भेजता। अपने बच्चों को फ़ौज में भेजने से डरना मत, जो शहादत लिखी है वो होगी। वालिद कैप्टन तैमूर हसन शहीद।
10 बच्चे भी और फौज में भेजता हूँ और मुझे पता है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात पर मुश्तमिल 6 मुल्की सीरीज का कल से आगाज। T20 टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें कल शारजाह में मद्दे मुकाबिल होंगी। 3 मुल्की सीरीज के बाद UAE में 9 सितंबर से एशिया कप भी खेला जाएगा। चीफ ऑफ एयर स्टाफ नेशनल जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। इवेंट में पाकिस्तान एयरफोर्स के खिलाड़ी छाए रहे। 4 मुख्तलिफ कैटेगरी से 16 खिलाड़ियों ने लास्ट 8 में जगह बनाई। पाक आर्मी, सूबा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और SNGPL के खिलाड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। रवां साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम US ओपन। सर्बिया के नोवाक जोकोविच का रिकॉर्ड 25वें ग्रैंड स्लैम के लिए सफर जारी। तीसरे मरहले में पहुंच गए। अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज, फ्रांसिस टियाफो ने भी थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। फ्रांस के आर्थर राइनरेंज, जमहूरिया चेक के टॉमस महाज भी कामयाब रहे। टेनिस ग्रैंड स्लैम US ओपन खवातीन सिंगल्स। दिफाई चैंपियन आलमी नंबर 1 बेलारूस की अरीना सबलेंका ने तीसरे मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमेरिका की जेसिका पगोला और इमानावारो, काजाकिस्तान की अरीना बाकिना और बरतानिया की इमारा दोकानो भी अपने मैचेस में कामयाब रही। फ्रांस में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप के मुकाबले जारी। मिक्स डबल्स में टॉप सीड फैंग यांजी और हवांग डोंगपेंग की चीनी जोड़ी को दूसरे मरहले में अपसेट शिकस्त। डेनमार्क के मैथियास क्रिस्टियानसेन और अलेक्जेंड्रा बॉजी ने 3 सेट्स में शिकस्त दी। और 21 मराहिल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड टूर वोल्टा आ अस्पाना 20 किलोमीटर का 5वां मरहला टीम टाइम ट्रायल पर मुश्तमिल रहा। टर्नर ने 192 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 50 मिनट और 14 सेकंड्स में तय किया। मुत्तहदा अरब अमारात की टीम पहले नंबर पर रही। डेनमार्क के जॉन्स विंगेगार्ड ने फ्रांस के डेविड गोदू से मजमूई बरतरी वापस ले ली। Esto es Joe Almeida en el centro. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म को फ़ज़ाई जायजे के दौरान चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने मुल्क की मजमूई सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ भी लाहौर से वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म को पंजाब के दरियाओं में तुगयानी और ज़ेरे आब इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पर तफसीली ब्रीफ किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सैलाबज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लेते हुए सैलाबी सूरत हाल से बचाव रिलीफ ऑपरेशन में तमाम ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत जारी की। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब को नारोवाल में तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। और पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने लाहौर में शाहतरा के मकाम पर दरियाए रावी का दौरा किया और सैलाब की सूरत हाल का जायज़ा लिया। उन्होंने सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों का भी जायज़ा लिया और इत्मीनान का इज़हार किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि भारत की आबी जारहियत की जितनी मसम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि इस सूरत हाल के पेश नज़र नए डैमों की तामीर नागुज़ीर है, जिसके हंगामी बुनियादों पर इक़दाम की ज़रूरत है।
بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں شدید سیلاب کی صورتحال برقرار ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر درمیانے درجے کے سیلاب کی صورتحال ہے۔ مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 1,91,000 جبکہ اخراج 1,85,000 کیوسیکس ہے۔ دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں واضح کمی ہوئی ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ دریائے چناب میں خانکی کے مقام پر انتہائی خطرناک اونچے درجے کی سیلابی صورتحال ہے اور یہاں پانی کا بہاؤ 8,59,000 کیوسیک ہے۔ قادر آباد کے مقام پر بھی انتہائی خطرناک اونچے درجے کا سیلاب ہے جبکہ پانی کا بہاؤ 9,96,000 کیوسیک ہے۔ پی ڈی ایم اے کے ڈی جی عرفان علی کاٹیا نے کہا ہے کہ دریائے راوی میں جسٹر کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب اور پانی کا بہاؤ 1,39,000 کیوسیک ہے۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام سے انتہائی اونچے درجے کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام سے 1,83,000 کیوسیک پانی گزر رہا ہے اور پانی کی سطح میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام سے تقریباً 2,00,000 کیوسیک پانی کا ریلا گزرے گا۔ دریائے راوی میں راوی سائفن کے مقام پر بھی پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور اس وقت 1,921 کیوسیک کا پانی کا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ عرفان علی کاٹیا نے مزید کہا کہ بلوکی ہیڈ ورکس پر درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال اور پانی کا بہاؤ 93,000 کیوسیک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی خطرناک اونچے درجے کا سیلاب ہے اور یہاں پر پانی کا بہاؤ 2,61,000 کیوسیک ہے۔ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے اور پانی کا بہاؤ 1,09,000 کیوسیک ہے۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کے مطابق پی ڈی ایم میں صوبے بھر میں مسلسل کوارڈینیشن کو یقینی بنا رہا ہے۔ تمام کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فیلڈ میں موجود رہیں، سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے لوگوں کے انخلاء کو جلد از جلد یقینی بنائیں اور عوام کے جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح اور ذمہ داری کے طور پر انجام دیں۔ تمام متعلقہ ریسکیو ریلیف ادارے ہائی الرٹ رہیں اور کوئی کوتاہی نہ کی جائے۔ دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب اور نالا پھلکوں میں طغیانی کے پیش نظر لاہور راولپنڈی ریلوے سیکشن پر ریلوے آپریشن معطل کر دیا گیا۔ لالا موسیٰ سے مسافر ٹرینوں کو متبادل راستے کے ذریعے لاہور، خانیوال، حیدرآباد اور کراچی آمد و رفت کے لیے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ صوبہ پنجاب کے 3 دریاؤں راوی، ستلج اور چناب میں شدید سیلابی صورتحال ہے۔ دریاؤں میں سیلابی صورتحال اور ریلیف سرگرمیوں کے حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے معظم الدین سے۔ جی معظم، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بارشوں اور بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کے بعد پنجاب کے 3 بڑے دریاؤں میں اس وقت سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ دریائے راوی، دریائے ستلج اور دریائے چناب میں مختلف مقامات کے اوپر انتہائی اونچے درجے کے اس وقت سیلابی صورتحال ہے۔ اگر میں دریائے راوی کی بات کروں تو اس وقت میں شاہدرہ کے مقام کے اوپر موجود ہوں اور اس وقت میرے پیچھے سے دریائے راوی میں 1,80,000 کیوسیک کے قریب جو پانی کا ریلا ہے وہ گزر رہا ہے، جبکہ دریائے راوی میں سائفن کے مقام کے اوپر اس وقت پانی کا جو ریلا ہے وہ 1,91,000 تک پہنچ چکا ہوا ہے۔ گزشتہ روز جسر کے مقام کے اوپر جو پانی کا ریلا تھا وہ 2,00,000 کیوسک سے زائد تھا، جو کہ اب وہاں پہ پانی کی سطح جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ اگر میں دریائے ستلج کی بات کروں تو دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام کے اوپر پانی کی جو سطح ہے وہ 2,50,000 کیوسک کے قریب ہے، جبکہ دریائے چناب میں سیلاب کی صورتحال کافی سنگین ہو چکی ہے اور دریائے چناب میں مرالہ کے اوپر پانی جو ہے وہ کافی زیادہ نیچے آئے، لیکن خانکی اور قادر آباد براج کے اوپر جو پانی کی سطح ہے وہ حد سے زیادہ اوپر جا چکی ہوئی ہے اور قادر آباد براج کی جو گنجائش ہے وہ 8,00,000 کیوسک ہے، جبکہ اس وقت وہاں پہ 9,96,000 کیوسک کے قریب جو پانی ہے وہ گزر رہا ہے، جس کے باعث قادر آباد براج ٹوٹنے کا بھی خدشہ ہے۔ ضلع انتظامیہ اور محکمہ آبپاشی کی ٹیمیں جو ہیں وہ موقع پر موجود ہیں اور بند کو مضبوط بنانے کے لیے تمام تر وسائل اور کوششیں جو ہیں بروئے کار لائی جا رہی ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ 8 اضلاع میں فوج کی خدمات طلب کی گئی ہیں اور 8 اضلاع میں پاک فوج کے جوان جو ہیں وہ ضلع انتظامیہ، پی ڈی ایم اے اور ریسکیو 122 کے جوانوں کی مدد کر رہے ہیں اور سیلاب میں پھنسے لوگوں کو محفوظ مقامات کے اوپر منتقل کیا جا رہا ہے۔ صوبہ پنجاب میں چناب، ستلج اور راوی میں سیلاب سے پنجاب کے کل 1,432 مدجات اور 12,36,824 شہری متاثر ہوئے ہیں۔ 2,48,086 لوگوں کو سیلاب کے باعث اپنے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کا منتقل کیا جا چکا ہے، جبکہ 694 ریلیف کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں اور 265 میڈیکل کیمپس بھی ہیں جہاں پہ لوگوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ اور پنجاب کے 3 بڑے دریاؤں میں اس وقت شدید ترین سیلابی صورتحال برقرار ہے اور اس وقت چناب اور راوی میں خاص طور پر جو پانی کا بہاؤ ہے وہ حد سے زیادہ ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ معصوم الدین، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ دوسری جانب مانسون بارشوں اور بھارت کی جانب سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تازہ ترین صورتحال کیا ہے یہ جان لیتے ہیں ہماری نمائندہ ازکا مقصود سے، جو اس وقت پی ڈی ایم اے آفس لاہور میں موجود ہیں۔ ازکا، بتائیے گا پی ڈی ایم اے کا کیا کہنا ہے اس تمام صورتحال کے حوالے سے، کیا اپڈیٹ ہیں؟
मॉनसून बारिशों और पंजाब में भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने की वजह से पंजाब के दरियाओं की इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी संगीन है और पंजाब में जो दरिया हैं उसके पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लाहौर के दफ्तर में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर हामिदुल्लाह साहब। इनसे जानते हैं कि ये जो पंजाब में सैलाबी सूरत हाल है इसके ऊपर वो किस तरह से काबू पा रहे हैं और इसके लिए वो क्या इक़दाम कर रहे हैं। पानी 10 लाख का रेला जो है वो तकरीबन इस वक्त चनाब से गुज़र रहा है, तो वो सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो जाएगी जब लोग जो हैं जो हमारी हिदायत हैं उन पे अमल नहीं करेंगे और अपने आप को महफूज मकामात पर, जो कि हमने सारे इंतज़ाम किए हुए हैं, रिलीफ कैंप बनाए हुए हैं, हमारी टीमें, रेस्क्यू की टीमें, हमारा PDMA का एडमिनिस्ट्रेशन का अमला वहाँ पर मौजूद है आपकी हिफाजत के लिए। आपके खाने पीने का इंतज़ाम भी किया हुआ है, तो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएँ। बेशक वो ज़्यादा टाइम के लिए रेला जो है ना वो सस्टेन नहीं कर रहा, लेकिन इंतहाई ख़तरनाक रेला है। तो इंतज़ामात मुकम्मल हैं, लोगों को बता दिया गया है, कैंप से इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं, लोगों को इवैक्यूएट जो अपनी मदद आपके तहत जा रहे थे वो खुद चले गए हैं। बाकी जो है वो गवर्नमेंट जो हमारे डिपार्टमेंट हैं उन्होंने ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया हुआ है। अगर खुदा न खासा कुछ हो 1129 पे रब्ता कर सकते हैं और ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से या PDMA की तरफ से ये जो मैसेज जा रहे हैं वो उसके ऊपर मनोअन अमल करें, अपने आप को भी महफूज रखें, अपने प्यारों को भी महफूज रखें। डायरेक्टर साहब का कहना है और आप देख रहे हैं कि यहाँ हम शादरा के मकाम के ऊपर, अगर आप पीछे पानी जरा भाई साहब आप हट जाते हैं थोड़ा सा, अगर आप पीछे पानी की सिर्फ इंटेंसिटी देखें तो इस वक्त तकरीबन 2,197 के करीब नजर आ रही है। वो तमाम इस सैलाबी रेले से पहले इवैक्यूएट कर ली गई थी। रेस्क्यू की इस वक्त जो 600 से ज़ायद कश्तियाँ पूरे पंजाब के अंदर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में 1122 अपने ऑपरेशन जो है वो जारी है और इस वक्त तमाम सिविल डिफेंस की कश्तियाँ, रेस्क्यू 1122 की कश्तियाँ, 115 की लोग जो हैं इस वक्त और आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी चीज़ें मोबिलाइज की गई हैं वो फील्ड में मौजूद हैं। इतना तारीख़ी सैलाब, अनप्रेसिडेंटेड वाटर इंटेंसिटी के साथ तीनों जो चनाब, रावी और सतलुज के रिवर्स हैं उसमें ये सैलाबी रेले फ़्लो कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये जो तमाम दरिया हैं उनके तमाम जो पानी का रास्ता है उसके साथ साथ जो आबादी है उसको इवैक्यूएट कर लिया गया था। तकरीबन 2.25 लाख आबादी महफूज मकामात पर मुंतकिल की गई। 2.25 लाख मवेशी को महफूज मकामात के ऊपर मुंतकिल किया गया और इसी ऑपरेशन, इसी निगरानी, इसी रेडीनेस, इसी प्रिपेयर्डनेस की वजह से मैं अफसोस के साथ ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि 12 तकरीबन डेथ्स हुई हैं और वो भी मैं ये बड़े वसूख के साथ कहना चाहती हूँ कि पंजाब हुकूमत के किसी भी अदारे जिनका मैंने अभी नाम लिया है उनकी गफलत की वजह से ये डेथ्स नहीं हुई, लोग जहाँ बहक नहीं हुए। अगर रेस्क्यू 1122 को कॉल लेट आई और मलबे के नीचे पहले से लोग जो हैं वो दब गए, उसकी वजूहात हैं और फिर दूर दराज के इलाकों में कश्तियों के ज़रिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और तमाम DC, तमाम ACs, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी इस वक्त जो फ्लड वॉर रूम है उसके अंदर लाइव हो रही है। तमाम सेफ सिटी जो कैमराज हैं उनके ज़रिए हो रही है। तमाम विजिलेंस जो है वो इस वक्त जारी है और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन अपने पूरे पैराफर्नेलिया के साथ फील्ड के अंदर मौजूद है। और मैं मीडिया का भी शुक्र अदा करती हूँ कि जिस तरह रिपोर्टिंग की गई और रिपोर्टिंग जारी है, हमने मीडिया से भी बहुत ज़्यादा रहनुमाई लेते हुए रेस्क्यू किए हैं लोगों को, क्योंकि कुछ लोगों को 112 तक एक्सेस नहीं थी। जहाँ मीडिया ने रिपोर्ट किया अभी 6 से 7 लोग मलबे के नीचे से निकाले गए हैं और वो भी मीडिया ने रिपोर्ट किया क्योंकि उनकी कॉल नहीं मिल रही थी बिकॉज ऑफ सिग्नल्स, लेकिन उसकी वजह से उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। तो मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं ये भी ज़रूर कहना चाहती हूँ कि इस वक्त पूरी कौम को एक ऐसी रिपोर्टिंग की ज़रूरत है जो कि तमाम लोगों का हाथ बटाए और तमाम लोगों की मदद करे, चाहे वो कम्युनिटीज़ हैं उनकी मदद करे, गवर्नमेंट की मदद करे, इन तमाम अदारों की मदद करे और जो लोग इस वक्त फील्ड में रेस्क्यू ऑपरेशंस में लोग अभी अपना अपना काम कर रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करती हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन
ये अदारे रेस्क्यू 112 की टीमें, 115 की टीमें 3 से 4 दिन तक सोई नहीं है और अपने तमाम लोगों को तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अक्रॉस पंजाब वो अपने तमाम ऑपरेशंस में मसरूफ़ हैं। और इसके साथ साथ में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं उन्होंने नारोवाल का, सियालकोट का वज़ीर आला पंजाब के साथ दौरा किया है। उसमें उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी ब्रीफिंग ली है, क्योंकि जो अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना है उसके अंदर पूरी जो मैनेजमेंट है, आपको याद होगा कि आज से 8 माह पहले वज़ीर आला पंजाब ने एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन शुरू किया था, नालों की सफाई का ऑपरेशन शुरू किया था। डीसिल्टिंग के 5 से 6 राउंड्स इस वक्त तक मुकम्मल हो गए हैं और जिसकी वजह से पंजाब जो है एक बहुत बड़े ख़तरे से इस तारीख़ी सैलाब में अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि बच गया है। और यही वो इंतज़ामी मैनेजमेंट होती है जिसकी ज़रूरत होती है ऐसी किसी भी नेचुरल क्लैमिटी की वजह से। तो मैं एक दफ़ा फिर तमाम रेस्क्यू टीम्स को जो फील्ड में मौजूद हैं उनको शाबाश देती हूँ, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से मीडिया को शाबाश देती हूँ उनकी रिपोर्टिंग के ऊपर। यही एक कौम की रिफ्लेक्शन है कि तमाम अदारे, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं अपनी हुकूमत का हाथ बटाएं, उनका बाजू बने और जिसकी वजह से हम आवाम को फ़ायदा दे सकें। अभी इस वक्त वज़ीर आला पंजाब भी उस दौरे से वापस आई हैं और वो भी मॉनिटरिंग रूम के अंदर मौजूद निगरानी कर रही हैं। मेरे साथ अलीम खान साहब जो कि यहाँ मौजूद हैं और 3 दिन से ये भी फील्ड के अंदर मौजूद हैं। हमारे MPAs, हमारे मिनिस्टर्स इस वक्त तमाम फील्ड के अंदर मौजूद हैं, उनके अपने अपने इलाकों में ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। फील्ड के अंदर मौजूद हैं हमारे MPAs, हमारे मिनिस्टर्स इस वक्त तमाम फील्ड के अंदर मौजूद हैं, उनके अपने अपने इलाकों में ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। रिलीफ का काम जारी है, एडमिनिस्ट्रेशन मुंतकिल जो जगह पे लोगों को पहुंचाया गया है महफूज जगह पे, वहाँ खाना अदारे, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं अपनी हुकूमत का हाथ बटाएं, उनका बाजू बने और जिसकी वजह से हम आवाम को फ़ायदा दे सकें। अभी इस वक्त वज़ीर आला पंजाब भी उस दौरे से वापस आई हैं और वो भी मॉनिटरिंग रूम के अंदर मौजूद निगरानी कर रही हैं। मेरे साथ अलीम खान साहब जो कि यहाँ मौजूद हैं और 3 दिन से ये भी फील्ड के अंदर मौजूद हैं। हमारे MPAs, हमारे मिनिस्टर्स इस वक्त तमाम फील्ड के अंदर मौजूद हैं, उनके अपने अपने इलाकों में ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। रिलीफ का काम जारी है, एडमिनिस्ट्रेशन मुंतकिल जो जगह पे लोगों को पहुंचाया गया है महफूज जगह पे, वहाँ खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, खाना प्रोवाइड किया जा रहा है। मवेशी की एक बहुत बड़ी तादाद, मैंने आपको पहले बताया कि तकरीबन 2 लाख मवेशी, जो एग्जैक्ट तादाद 1,78,000 है, उनको अपने मालिकों के साथ महफूज जगह के ऊपर से जो सैलाबी रेला है उसके करीब मत जाएं, क्योंकि ये इस वक्त बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। पानी जो है उसकी इंटेंसिटी, उसकी स्पीड और उसका जो लेवल है वो तीनों हाई अलर्ट के ऊपर हैं। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप भी ताउन करें और इंशाअल्लाह हम इस आफत से मुकाबला कर रहे हैं, मुकाबला करते रहेंगे और इंशाअल्लाह 3, 4, 5 दिन के मरहले में। और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हर जगह के ऊपर हदायत दे दी है, तखमीना लगाया जा रहा है नुकसान का, लोगों के घरों का, लोगों के मवेशियों का, जो नुकसान हुआ है उसको पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब ने कल ऐलान किया था, उसको पूरा करेगी। आप लोग प्लीज़ सब्र से, तहम्मुल से काम लें। इंशाल्लाह हम एक होकर, एक कौम बनकर सब लोग इस आफत का मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह आपकी गवर्नमेंट आपके साथ शाना बशाना खड़ी है, आपकी वज़ीर आला आपके साथ शाना बशाना खड़ी है और हर मौके के ऊपर हम आपके साथ हैं। किसी किस्म का पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की पैनिक रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सब एक जुज़ियात से जुड़ी रिपोर्टिंग करें ताकि हम सब एक दूसरे की मदद कर सकें। मैं ज़रा अलीम खान साहब और अज़मा बुखारी साहब, अगर अलीम खान साहब आप अगर बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मैं अपनी बहन का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो ख़ास तौर पे शाहजहाँ तशरीफ़ लाई, उन्होंने आके यहाँ के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। मैं हुकूमत पंजाब का ख़ास तौर पे वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रोएक्टिव होकर वो अपना काम कर रही है और उसने बावजूद इसके कि ये अनप्रेसिडेंटेड सैलाब है और पंजाब में शायद इस तरह का सैलाब हमने अपनी होश में तो नहीं देखा। और ये जो रिवर रावी है, मैंने कभी इस तरह का रिवर रावी नहीं देखा। तो ये बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हो रहा है इस वक्त और जिसमें पंजाब हुकूमत जो अपना फ़ाल किरदार अदा कर रही है।
मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसी के साथ मैं सारी कौम को कहना चाहता हूँ कि ये वक्त ऐसा है जिसमें आपने अपने सियासी जो आपकी जियो न्यूज़ काम कर रही है और उसने बावजूद इसके कि ये अनप्रेसिडेंटेड सैलाब है और पंजाब में शायद इस तरह का सैलाब हमने अपनी होश में तो नहीं देखा, और ये जो रिवर रावी है मैंने कभी इस तरह का रिवर रावी नहीं देखा। तो ये बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हो रहा है इस वक्त, और जिसमें पंजाब हुकूमत जो अपना फ़ाल किरदार अदा कर रही है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। इसी के साथ मैं सारी कौम को कहना चाहता हूँ कि ये वक्त ऐसा है जिसमें आपने अपने सियासी जो आपकी अटैचमेंट है उससे बाला ताक होते हुए, उसको बाला ताक रखते हुए आप सब ने मिल के इसको इसके हल के लिए इसके लिए अपनी जो एफ़र्ट्स हैं उनको इस्तेमाल करना है। इस वक्त कोई जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है उसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हमारे CM KP हैं, उनका बहुत पॉजिटिव बयान आया कि हम पंजाब के अवाम के साथ हैं, हम पंजाब को सपोर्ट करेंगे। इसी तरह जो वज़ीर आला सिंध है उनका बयान आया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इस वक्त ये मौका है कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो इकट्ठी हो। ये जो आफत आई हुई है इसमें जो लोग बेचारे बेघर हो रहे हैं, जिनकी अमलाक को नुकसान हो रहा है, उनकी मदद के लिए हम सारे इकट्ठे मिलकर उनका काम करें। इसके बाद जब ये हालात ठीक हो जाएंगे तो आप बेशक अपनी सियासत जारी रखिएगा, लेकिन ये वक्त नहीं है सियासत करने का। इसलिए जहाँ पे भी हुआ है, जहाँ नुकसान गिलगित में हुआ था, पंजाब हुकूमत ने, हम सब ने जो पंजाब से हैं, उन्होंने कहा था कि ये हमारा नुकसान है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि NHA के बुनियाद पे ये आपको क्या बता सकूँ कि जहाँ जहाँ पे भी सड़कों का नुकसान हुआ है, मवासलात जो हमारा इदारा है वो इंशाअल्लाह ताला वजारत इसको प्रायोरिटी के ऊपर हल करेगी। जहाँ जहाँ पे सड़कें जो है वो डिस्कनेक्ट हुई है उनको हम ठीक करेंगे, जहाँ जहाँ पुल बह गए हैं हम उनको ठीक करेंगे, और पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला जो हमारा कनेक्टिविटी है पूरे मुल्क की, इंशाअल्लाह ताला उसको हम बहाल रखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो सियालकोट और नारोवाल के दौरे से यहाँ अभी 10 मिनट में शाहदरा पहुँचेंगी। आप लोग यहीं रहें और वो यहाँ आपसे बात भी करेंगी और यहाँ का जायज़ा भी लेंगी। ये बताइएगा क्या जो रावी है इसकी जो कैपेसिटी है वो 2.5 लाख क्यूसिक तक जज्ब करने की है कि ये बर्दाश्त कर सकता है। कोई प्लान है हाजी कोट वाली साइड पर तोड़ने का? प्रेशर बढ़ता है क्योंकि हलीम खान साहब आपके साथ खड़े हैं, बात करनी पड़ रही है। जो पॉलिटिक्स है वो सोशल मीडिया पर ये हो रही है कि शायद चूँकि वो रिवर बेड पर जो सोसाइटीज़ हैं उनको बचाने के लिए पीछे से जो गरीबों की बस्तियाँ हैं, तो ये थोड़ा सा क्लियर। देखिए रिवर बेल्ट्स के ऊपर जो सोसाइटीज़ हैं और जो लोग रहते हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, वो कोई पाकिस्तान से अलग लोग नहीं हैं, उनके भी घर हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब अगर आप ये कहें कि वो किस शख्स की सोसाइटी है तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि उसको बचाए। गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है तमाम पाकिस्तान के शहरियों को बचाएं, जिस तरह भी कोशिश कर सकते हैं, और वही गवर्नमेंट कर रही है। इस वक्त इरिगेशन डिपार्टमेंट, इस वक्त जो वासा के लोग हैं, इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन, ये मेरे साथ DC साहब यहाँ खड़े हैं और ये 3 दिन से फील्ड में हैं। आप लोग कैमरों के साथ भी इनको देख रहे हैं कि इनके ACs, इनके DCs, कमिश्नर्स सब फील्ड में। तो हमारे लिए ये तफरीक करना कि हाउसिंग सोसाइटी किसकी है और किसकी नहीं है, हमारे लिए हर शहरी की जान, उसका माल, उसका तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है, और हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वो इक़दाम करेंगे। जो भी एक्सपर्ट व्यू है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो फोकस है, जो मकसद है, वो पाकिस्तान के हर शहरी को इस आफत से बचाने, उनके माल को इससे, उसके मवेशी को, उनके रोज़गार को इससे बचाना है। पानी की सतह तो बढ़ गई है मैडम, आप कह रहे हैं कि आपके अदारे जो उनसे हैं वो इक़दाम कर रहे हैं, मुस्बत इक़दाम के जो पानी की सतह दिन के साथ साथ बढ़ रही हो। देखिए हमने पानी की सतह बढ़ने के साथ इक़दाम नहीं किए, हमने ये प्रिडिक्ट किया कि ये पानी की सतह बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरह का रेला पीछे से आ रहा था तो हमने इवैक्यूएशन 3 दिन पहले शुरू कर दी थी। हमने महफूज मकामात पर मुंतकिली 4 दिन पहले शुरू कर दी थी। और मैंने आपको जैसे पहले कहा कि नालों की सफाई, उनकी डीसिल्टिंग, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जो वज़ीर आला पंजाब का एक, आपको पता है कि एक बहुत ही फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, वो हमने आते ही हुकूमत में शुरू कर दिया था। तो जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी तबाही से पंजाब बच गया, पाकिस्तान बच गया, पंजाब के लोग बच गए, और इसी स्पिरिट के साथ काम इस वक्त फील्ड में हो रहा है। जतर के मकाम पर जहाँ
इंडिया से पानी इंटर होता है तो पहला जो हिफाजती बंद है वहाँ पे अभी तक कोई भी टीम नहीं पहुँची, जैसे आपने पहले कहा कि मीडिया के थ्रू हमें पता चल रहा है, इसी वजह से इसको फर्स्ट समझते हैं। देखिए यस सर, ये जो आपने बात की ये कल रिपोर्ट हुआ था, टीम पहुंचकर अभी तक तकरीबन 2500 लोगों को मुंतकिल भी कर चुकी है। और जो आपने अभी दोबारा बात की है मैं दोबारा चेक करा लेती हूँ, आपकी मेहरबानी है कि आपने इसकी दोबारा लेकिन कल भी ये निशानदेही हुई थी तो उसके ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, अभी आपने किया मैं दोबारा इसको चेक करा लेती हूँ। अच्छा मैम, जस्टर से लेकर चूरू तक ये एक ही पॉकेट नजर आ रही है, क्या ऐसी कोई और पॉकेट्स भी हैं? ये जो पॉकेट्स है कहाँ तक एरिया कवर करेगी? जस्टर से लेकर चूरू तक ये देखिए अभी तो जो पानी का बहाव है वो उसका जो रास्ता है वो एक लेंथ लंबी, और जो सबसे ज़्यादा अनप्रेसिडेंट बात है कि वो तीनों दरियाओं का फ्लो की इंटेंसिटी जो है कि वो तीनों दरिया चल रहे हैं इस वक्त सैलाबी रेलों के साथ। तो आप भी अल्लाह ताला से दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, मैनेजमेंट, हमने अपनी कसर कोई नहीं छोड़नी, जो हुकूमत है आप लोग हैं सबके साथ मिल के हमने कोई ऐसा गैप नहीं छोड़ना जिससे अल्लाह ना करे किसी किस्म का नुकसान हो। बाकी जो है अल्लाह ताला से रहम की दुआ की जा सकती है और अल्लाह ताला भी अपना करम करेगा। अच्छा मरियम साहब एक चीज़ बता दीजिएगा, नहरों की मुखालफत करते थे, अब लोग ये सिंध में भी लाहौर से मनाज़र आप देख रहे थे। शाहदरा के मकाम पर सूबाई वज़रा मरियम औरंगज़ेब और उस्मा बुखारी के साथ साथ वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे। उनका कहना था कि लाहौर में इस वक्त 2 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। आपकी कोशिश ही होती है कि कोई ना कोई बंदा कंट्रोवर्शियल बात करे ताकि आपकी खबर बने, पर खुदा के लिए इस मुल्क का भी ख्याल करें, इस कौम का भी ख्याल करें। अपने टिकरों के चक्कर में हमारा बेड़ा गर्क ना करें कौम का, ठीक है, कि आपका टिकट चल जाए, ठीक है। खुदा के लिए इस कौम को इकट्ठा हो लेने दें, किसी वक्त तो हो लेने दें। बाहर सैलाब आया हुआ है, आपको इस बात की पड़ी है कि किसी तरीके से कोई फुलझड़ी छूट जाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। उन्होंने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम को इस वक्त इकट्ठा होने की ज़रूरत है। इज्तमाई काविशों की बदौलत पंजाब बड़ी तबाही से बच गया। पंजाब के तमाम वज़रा अपने मुतालिका अज़ला में सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दरियाओं के साथ साथ मुल्हिका आबादी वाले जो इलाके हैं उनको भी खाली करवाया जा रहा है, जबकि पूरी कौम सब्र और तहम्मुल से काम ले। जल्द इस मुश्किल पर काबू पा लिया जाएगा। जामा वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जहान वडपल ने नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार से टेलीफोनिक रब्ता किया है। राबते में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म को दोहराया। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते की सूरत हाल के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन बैरेट ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें पाक बरतानिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने समेत इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात पर तबादला ख्याल किया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी और इंसानी स्मगलिंग के हवाले से इश्तराक कार बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से अमन का दाई रहा है, दहशतगर्दी की हर शक्ल की पुरजोर मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि बरतानिया तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान का अहम शराकतदार है। बाहमी मफाद के शोबों में बरतानिया के साथ 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। इस मौके पर बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान में सैलाब और बारिशों से कीमती जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस करते हुए जाँ बहक अफराद के ख़ानदानों से ताज़ियत की। वज़ीर बहरी अमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी को पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन PNSC हुकाम ने ब्रीफिंग दी, जिसमें कौमी बेड़े की तौसी और हालिया पेशरफ से आगाह किया गया। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि PNSC के बेड़े में 2 नए एफ्रोमिक्स टैंकर शामिल कर लिए गए हैं, जिसके बाद कॉरपोरेशन का बेड़ा 10 से बढ़कर 12 जहाज़ों पर मुश्तमिल हो गया है। वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि रवा साल के आखिर तक कौमी बेड़े को 20 जहाज़ों तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। नए एफ्रोमैक्स टैंकर खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील में मुआविन साबित होंगे, जो तवानाई सिक्योरिटी के लिए नहायत अहम कदम है। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की शिपिंग पर इन्हिसार कम करने से पाकिस्तान को कीमती ज़र मुबादला भी बचेगा। वज़ीर बहरी उमूर ने कहा कि पाकिस्तान हर साल गैर मुल्की शिपिंग कंपनियों को फ्रीट कीमत में तकरीबन 4.6 अरब डॉलर अदा करता है, जबकि कौमी बेड़े के तौसीह इस इन्हिसार को कम करेगी। उन्होंने कहा कि नए जहाज़ तवानाई की बढ़ती हुई दरामदात को मौसर अंदाज में संभालने में मददगार होंगे। उन्होंने PNSC को हिदायत दी कि वह मुल्की और गैर मुल्की नए कारोबारी मौक़े तलाश करने को मज़ीद तेज़ करे। सेहत के वज़ीर मामलूक डॉक्टर मुख्तार भरत से इंटरकल ग्लोबल के डायरेक्टर नबील अहमद ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें सेहत के शोबे में ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बात हुई।
ڈاکٹر مختار بھرت نے وزیراعظم کے ہیپاٹائٹس سی کے خاتمے کے پروگرام میں انٹیگرل گلوبل کی معاونت کو سراہا اور کہا کہ وزارت صحت اسلام آباد کے نظام صحت کو ماڈل ہیلتھ سٹی بنانے کی خواہاں ہے۔ انٹیگرل گلوبل نے ملک میں جاری منصوبوں کے حوالے سے وزیر صحت کو بریفنگ دی اور ہیپاٹائٹس بی کی برتھ ڈوز متعارف کرانے پر بھی زور دیا۔ ملاقات میں ماحولیاتی پہلوؤں اور قومی اور صوبائی سطح پر عمل درآمد کے لیے آئندہ اہم اجلاس بلانے پر اتفاق کیا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے ریاستی ادارے اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی آزاد کشمیر اور ترکیہ کے ادارے ترک کوآپریشن اینڈ کوآرڈینیشن ایجنسی ٹیکا کے اشتراک سے کیپیسٹی بلڈنگ اینڈ رسپانس کے موضوع پر 3 روزہ تربیتی پروگرام مظفر آباد میں اختتام پذیر ہو گیا۔ تفصیل بتائیں گے عدیل احمد خان۔ تربیتی سیشنز کا مقصد ہنگامی صورتحال میں فوری رد عمل کی صلاحیتوں میں اضافہ اور ادارہ جاتی ہم آہنگی کو فروغ دینا تھا۔ تربیتی پروگرام میں ریسکیو 1122 غوطہ خوروں، ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنیشینز اور کمیونٹی نمائندگان نے شرکت کی۔ تربیتی پروگرام کے اختتام پر ترک ادارے ٹیکا کی جانب سے ہنگامی صورتحال سے نبردآزما ہونے کے لیے جدید آلات، موٹر سائیکلز، ایمبولینسز اور دیگر ساز و سامان اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے سپرد کیا گیا۔ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر نے آزاد کشمیر کے شہریوں کے بچاؤ کے لیے دنیا بھر کی جو مختلف آرگنائزیشن پاکستان کے اندر موجود ہیں ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کی ہے۔ آج جو ٹرکش آرگنائزیشن ہے ٹیکا، اس کے تعاون سے آزاد کشمیر کے اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے محکمے کو بہت اچھا ایکوپمنٹ ملا ہے جو واٹر ریسکیو میں، ڈیزاسٹر کے دیگر ریسکیو کے عمل میں ہمیں کام آئے گا۔ So this is a capacity building project that we have started with in cooperation with SDMA, Azad Jammu Kashmir. So we organized a 3-day training for SDMA staff and also a number of volunteers. And in the framework of the project, we also provided a number of equipment to support the capacity of 1122 and also SDMA. یہ ٹرکش انٹرنیشنل کوآپریشن میں ہم ریسکیو 1122 اور اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی استعداد کار کو بڑھانے کے لیے ریسکیو اکوپمنٹ، روبوٹکس اور 5 ایمبولینس بائک ڈونیٹ کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو آج کل جدید آلات ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے ان کو پراپر یوٹیلائزیشن کے لیے ٹریننگ پرووائڈ کی ہے۔ تربیتی پروگرام کے شراکا میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ بعد ازاں دومیل کے مقام پر دریا میں ریسکیو 1122 کے اہلکاران کی جانب سے سیلابوں اور آبی حادثات کے دوران واٹر ریسکیو مشقوں کے عملی مظاہرے بھی کیے گئے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فل سکیل ایمرجنسی ایکسرسائز کا اہتمام کیا گیا۔ مزید تفصیل جانتے ہیں کوئٹہ سے سرفراز شیخ کی اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فل سکیل ایمرجنسی ایکسرسائز ایویشن ریسکیو آپریشن 2025 منعقد کی گئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل اور اراکین اسمبلی تھے۔ اس موقع پر ایئرپورٹ منتظمین، ریسکیو اینڈ فائر فائٹنگ سروسز، سول ایویشن اتھارٹی، پی ڈی ایم اے بلوچستان، ایمرجنسی ریسکیو آپریشن 1122، محکمہ صحت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حصہ لیا۔ خطاب کرتے ہوئے گورنر بلوچستان کا تقریب سے کہنا تھا کہ انسانی جانوں اور املاک کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ The government of Balochistan stands firmly behind this cause. Safety at our airports is not the job of one department alone. Every single one of you plays a critical role in ensuring that if the unexpected happens, we act as one team. مشق کے دوران فرضی جہاز حادثے کی صورتحال تخلیق کی گئی، جس میں ریسکیو اینڈ فائر فائٹنگ ٹیموں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی اور آگ پر قابو پایا۔ ایویشن حکام کا کہنا تھا کہ اس طرح کی مشقیں نہ صرف اداروں کی صلاحیتوں کو جانچنے کا ذریعہ ہیں بلکہ ہنگامی حالات میں اداروں کے درمیان بہترین معاونت کو یقینی بناتی ہیں۔ اس ایمرجنسی ایکسرسائز کا مقصد کسی بھی فضائی حادثے یا ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کو یقینی بنانا ہے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔
साबिक सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल रिटायर्ड सुहेल अमान ने कहा है कि मार्का हक बुनियादुल मरसूस में पाकिस्तान की भारतीय जारहियत के खिलाफ तारीखी फतह एक जानिब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना सलाहियतों का एतराफ़ है तो दूसरी जानिब पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर जिस अंदाज में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया इसकी मिसाल नहीं मिलती। सुहेल अमान इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के ज़रिए तमाम थॉट लीडर्स फोरम में मार्का हक और इससे आगे के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। आगा मसूद खालिद की रिपोर्ट। ये मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं शाहदरा के हैं और आपको आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो शाहदरा के मकाम पर पहुंची हैं जहां उन्हें पंजाब के अंदर सैलाबी सूरत हाल और ख़ास तौर पर दरिया रावी में जो सैलाब की सूरत हाल है उसके हवाले से उनको ब्रीफिंग दी जाएगी। आपको आगाह करें कि इस वक्त दरिया रावी जो है ख़ास तौर पर उसकी सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो रही है और तशवीशनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से ख़ास तौर पर लाहौर के और रावी के इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं वहाँ के जो मकीन हैं उनको एक तरफ जहाँ इलाका खाली करने की हिदायत जारी की गई हैं तो वहीं हुकूमती सतह के ऊपर कोशिशें की जा रही हैं कि तमाम तर चीज़ें जो हैं उनको मैनेज किया जाए और वहाँ लोगों का इनखला जो है वो यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज शाहदरा पहुँच गई हैं और सैलाबज़दा इलाकों का जायज़ा भी ले रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शाहदरा का मकाम का जायज़ा लेने के लिए कश्ती में बाकायदा तौर पर रवाना हुई हैं और बता रही हैं कि हुकूमत पंजाब की हमदर्दियाँ लोगों के साथ हैं और बेहतरीन इंतज़ाम करने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को जो सहूलतें हैं वो फराहम की जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो हैं उनको ब्रीफिंग भी दी गई है, ख़ासतौर पर जिन दरिया में तुगयानी के हवाले से जो इलाके ज़ेर आब आए हैं वहाँ पर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से भी उनको ब्रीफ किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं, वो कश्ती में मौजूद हैं, कश्ती में बैठकर सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा भी ले रही हैं और आसपास के इलाकों में जहाँ जहाँ कुछ कमी रह गई है, कुछ गुंजाइश बाकी रह गई है तो उन सब चीज़ों का भी जायज़ा ले रही हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी उनके हमरा हैं और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अमला भी उनके साथ मौजूद है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं और मुसलसल सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए बज़ाते ख़ुद वो फील्ड में मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ शाहदरा में दरिया रावी में कश्ती में ख़ुद बैठ कर सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं। ये मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं शाहदरा लाहौर से जहाँ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ मौजूद हैं और वो ख़ुद इस तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से अभी तक तकरीबन 2.25 लाख अफराद ऐसे हैं जिनको महफूज मकामात पर जो है वो मुंतकिल किया गया है और मानसून की शदीद बारिशों की वजह से अब तक पंजाब की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो 12 अफराद जो हैं इसमें जाम बहक हुए हैं। पाक फ़ौज, रेस्क्यू के इदारे और तमाम मुतालिका अज़ला के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर इस वक्त जो हैं वो फील्ड में मौजूद हैं और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इज्तमाई काविशें जो हैं वो की जा रही हैं और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि वो ख़ुद इनफरादी सतह के ऊपर भी अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए इस वक्त मौजूद हैं शाहदरा के मकाम पर और वो दरिया रावी का ख़ुद जायज़ा लेने के लिए कश्ती में सवार हुई और इस तमाम तर सूरत हाल का जो है वो जायज़ा ले रही हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी आगाह करें कि पंजाब के तमाम वज़रा जो हैं वो भी मुतालिका इलाकों के अंदर अपनी जो सूरत हाल है उसको मॉनिटर कर रहे हैं और सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो भी जारी है। दरियाओं के साथ मुल्हिका जो आबादियाँ हैं उनको भी खाली करवाया जा रहा है और साथ ही साथ हुकूमत से ये भी हुकूमत की जानिब से ये भी अपील की जा रही है कि जितने भी लोग हैं वो भी हुकूमत के साथ जो है वो ताउन करें और ख़ास तौर पर जो दरिया से मुल्हिका इलाके हैं उन इलाकों को जो है वो खाली किया जाए ताकि वहाँ पर जो हिफाजती सरगर्मियाँ हैं उनको भी जारी रखा जा सके। ये मनाजिर हैं आप मुलाज़ा कर रहे हैं शाहदरा से जहाँ पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सैलाबी इलाकों का ख़ुद से जायज़ा ले रहे हैं, मुआयना कर रही हैं और बज़ाते ख़ुद लाइफ जैकेट पहनकर वो कश्ती में बैठी हैं और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी उनके हमरा हैं। शाहदरा में वो मौजूद हैं और जिस तरह से दरिया रावी की सूरत हाल से हमने आपको आगाह किया था कि यहाँ पर जो पानी का बहाव है वो 1,48,000 क्यूसेक्स है और यहाँ पर शाहदरा के मकाम पर जो है ऊँचे दर्जे का सैलाब है। DGPDM ने भी यही बताया था कि आइंदा 12 घंटों के दौरान भी शाहदरा के मकाम पर पानी के बहाव में मज़ीद इजाफा भी होगा। आज तकरीबन 1.5 लाख क्यूसेक तक पानी का रेला भी गुजरेगा और इसी चीज़ को मॉनिटर करने के लिए, देखने के लिए कि वहाँ पर खातिर खा इंतजामात हैं, वज़ीर आला ख़ुद यहाँ तशरीफ़ लाई हैं, शाहदरा में मौजूद हैं और कश्ती में बैठ के सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा भी ले रही हैं। चूँकि जसड़ के मकाम पर भी इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाब है, बलोच के हेडवर्क्स के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, तो इस वक्त पूरी सैलाबी सूरत हाल है पंजाब में और वज़ीर आज़म मरियम नवाज शरीफ ख़ुद इस सारी सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए फ़ील्ड में मौजूद हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ शादरा में हैं और इस वक्त जो सूरत हाल बनी है पंजाब के अंदर, बहुत से इलाके, बहुत से देहात ज़ेर आ गए हैं, बहुत सी जगहों से लोगों के इनखला को भी यकीनी बनाया गया है। सारी सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए हम देखते हैं कि ख़ुद भी वो मॉनिटर रूम में मौजूद भी रहती हैं, मीडिया पर भी आके बात करती हैं, बाकायदा तौर पर इजलास भी चेयर किए जाते हैं और हिदायत जारी की जाती हैं। और अब भी यही कहा गया है कि जिस कदर हो सके लोगों को तमाम सहूलियात पहुँचाई जाए, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया जा चुका है और जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वहाँ उनको पहुँचाई भी जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब कश्ती में सवार होकर सैलाबी इलाकों का दौरा भी कर रही हैं, सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर कर रही हैं, ख़ुद फील्ड में मौजूद हैं और एक अच्छा प्रेसिडेंट भी सेट हो रहा है कि वज़ीर आला पंजाब ख़ुद जो है वो अपने रिहाइश गाह से यहाँ पहुँची हैं ताकि लोगों के तासरात को भी समझ सके, लोग जिस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं उसका उनको एहसास है, जिसकी बिना पे वो ख़ुद आज फील्ड में लोगों के माबैन मौजूद हैं। आप ये मनाज़िर देख रहे हैं। आपको बताएं कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ जो हैं वो ख़ुद फील्ड में मौजूद हैं और कश्ती में सवार होकर इस वक्त रावी की जो सूरत हाल है उसका वो जायज़ा ले रही हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि पंजाब हुकूमत जो है वो सूबे के वो तमाम इलाके जो कि सैलाब से मुतासर इलाके हैं वहाँ पर इमदादी सरगर्मियों के हवाले से तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को ऑलरेडी हिदायत जो हैं वो जारी की जा चुकी हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी आगाह करें कि पंजाब के कुछ इलाके जिनमें ख़ास तौर पर अगर बात की जाए सियालकोट, नारोवाल की और इसके साथ साथ दीगर जो इलाके हैं जो कि सैलाब से मुतासर इलाके हैं जहां सैलाबी पानी जो है वो दाखिल हुआ था, उन इलाकों के अंदर भी हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। और ये मनाज़िर अब से कुछ देर पहले के मनाज़िर हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ जो हैं वो पहुँची थी शादरा के मकाम पर जहाँ वो दरिया रावी की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वहाँ पर पहुँची हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी आगाह करें कि एक तरफ जहाँ ये सैलाबी सूरत हाल का सामना है तो वहीं हुकूमती सतह के ऊपर भी हम मुसलसल देख रहे हैं कि इन तमाम सूरत हाल से निमटने के लिए इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। दरियाए चनाब के हवाले से अगर हम बात करें तो हेड कादराबाद के मकाम पर पानी का जो दबाव है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरिया रावी जो है उसके पानी के बहाव में भी मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है और इस वक्त पानी का बहाव जो है वो 9 लाख क्यूसेक के करीब जो है वो पहुंच चुका है, जबकि इसकी सलाहियत जो है दरिया चनाब की अगर हम बात करें हेड कादराबाद की तो वो 8 लाख क्यूसेक जो है वो बताई जाती है और तकरीबन 2 लाख क्यूसेक पानी जो है वो इजाफी है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि हाफिजाबाद और चन्यूट के इलाके जो हैं इससे शदीद मुतासर होंगे। और फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको ये बताएं कि डिप्टी कमिश्नर को शहरियों के फौरी इनखला की हिदायत जो हैं वो भी जारी की गई हैं और ख़ुद वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो फील्ड में मौजूद हैं, इस तमाम सूरत हाल का जो है वो जायज़ा ले रही हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ वो तमाम अपनी सूबाई मशीनरी जो है उसको भी एक्टिव किया गया है। तमाम सूबाई वज़रा, तमाम कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो भी फील्ड में मौजूद हैं इस तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ लोगों का एहसास, लोगों का दर्द दिल में लिए खुद फील्ड में मौजूद हैं। उनको इस बात का शिद्दत से एहसास है कि लोग किन तकालीफ से गुजर रहे हैं, चूँकि अपना घर बार छोड़ना इतना आसान का काम नहीं है, मुश्किल और दुश्वार होता है, लेकिन फिर भी उनके साथ फील्ड में मौजूद होने का ये एहसास ही काफ़ी है कि उनका ये दुख दर्द महसूस करते हुए रिलीफ और रेस्क्यू की जो सरगर्मियाँ हैं वो जारी रखे हुए हैं। मुतल्लिका हुकाम अपडेट कर रहे हैं, लम्हा ब लम्हा खबर दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ जिस तरह से आप फुटेज देख सकते हैं कि खुद कश्ती में मौजूद हैं, अमला साथ उनके मौजूद हैं, सैलाबी सूरत हाल का खुद जायज़ा ले रहे हैं कश्ती में बैठकर। और ये बड़ा एक अच्छा एक प्रेसिडेंट भी सेट हुआ है क्योंकि 38 साल के बाद तीनों दरियाओं में एक साथ पानी जो है वो बहुत ज़्यादा आया है। बारिशों की वजह से कुछ आबी जारियत भी की गई है भारत की जानिब से, तो वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को इस चीज़ का मुसलसल इदराक भी है और सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए वो खुद फील्ड में मौजूद हैं और कश्ती में बैठकर जो सैलाबी सूरत हाल बनी है उसका खुद जायज़ा ले रही हैं। चूँकि इससे पहले भी बताएं तो जो पंजाब के दरिया हैं उनमें काफ़ी हद तक तुगयानी भी आई है, बहुत से इलाके ज़ेरे आब भी आए हैं और इन इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन का अमल भी जारी है, चूँकि हिदायत जारी की गई थी वज़ीर आला की जानिब से। और फिर इन पंजाब के दरियाओं में जो तुगयानी और ज़ेरे आब इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से वज़ीर आला को ब्रीफिंग भी दी गई थी। इससे पहले उन्हें फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया था इन सैलाबी इलाकों का और जो तमाम बचाव रिलीफ ऑपरेशन है उसके हवाले से जितने भी ज़रूरी इक़दाम हैं वो करने की हिदायत भी जारी की गई थी वज़ीर आला पंजाब की जानिब से। और ये हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से एक उफ्ताद है, कुदरती आफत है,
पाकिस्तान को इसका सामना करना पड़ रहा है। और इस सारे सिनेरियो में हुकूमत पाकिस्तान, पंजाब हुकूमत जिस तरह से अपने शहरियों के साथ खड़ी है, देही इलाकों में जो लोग अब मुतासर हैं उनके साथ खड़ी हैं, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और यही बात है कि हेल्पलाइन भी जो है वो कायम कर दी गई है PDMA और DDMA की तरफ से, और मलिकवाल, फालिया, मंडी बहाउद्दीन के लिए ज़िला कंट्रोल रूम नंबर जो है वो भी दे दिया गया है जिस पर रब्ता किया जा सकता है। फैसलाबाद के रूम नंबर्स भी जो है आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शेयर किए जा रहे हैं। सैलाब अलर्ट जारी है, मरबूत रेस्क्यू का अमल भी जारी है, रिलीफ ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो खुद जायज़ा ले रही हैं। इससे पहले उन्हें फ़ज़ाई जायज़ा लिया और अब बाकायदा खुद वो पानी के अंदर कश्ती में मौजूद हैं कि किस तरह से जो इर्द गिर्द की आबादी है उसको भी मॉनिटर करेंगी, जायज़ा लेंगी कि अभी किस तरीके से जो इसके रिहेबिलिटेशन का अमल है वो किस तरह से स्टार्ट किया जा सकेगा। इस चीज़ से जबकि वो खुद फील्ड में मौजूद हैं उसको बेहतर अंदाज़ा हो सकेगा कि किस तरह से हमने पानी उतरने के बाद लोगों को अपने घरों में दोबारा से सेटल करना है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मानसून बारिशों का जो 9वां स्पेल है वो कल से शुरू हो रहा है। 29 अगस्त से 2 सितंबर तक पंजाब के जो बेशतर अजला हैं उनमें शदीद तूफ़ानी बारिशों की जो है वो पेशगोई की गई है। रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चुकवाल, जेहलम, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें जो हैं वो मुतवक्के हैं। इसके साथ साथ डेरा गाजी खान, मुल्तान और राजनपुर में भी बारिशों का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ज़िली इंतज़ामिया जो है उसको भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ आपको ये भी आगाह करें कि पंजाब में इस वक्त जो दरियाओं की सूरत हाल है उन दरियाओं की सूरत हाल को देखते हुए पंजाब हुकूमत जो है वो मुसलसल इक़दाम कर रही है ताकि मज़ीद किसी भी बड़े नुकसान से जो है वो बचा जा सके। जिसकी एक मिसाल आप ये ख़ुद अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ख़ुद वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो मौजूद हैं फील्ड के अंदर और कश्ती में बैठ कर वो इस तमाम तर सूरत हाल का जो है वो ख़ुद जायज़ा ले रही हैं। उनके हमरा सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहिबा वो भी मौजूद हैं और दीगर अहम अरकान जो हैं वो इनके हमरा मौजूद हैं। इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि मुख्तलिफ जो दरियाओं की अगर सूरत हाल है उससे अगर हम आपको आगाह करें तो बारिशों के बाइस पंजाब के जो दरियाए और नदी नाले हैं उनमें शदीद सैलाबी कैफियत जो है इस वक्त मौजूद है। खानकी के मकाम पर अगर हम बात करें तो इंतहाई ऊँचे दर्जे का जो है वो सैलाब है। पानी का बहाव 8,59,000 क्यूसेक है। इसी के साथ साथ दरिया चनाब में मराला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद जो है वो 1,91,000 है और अखराज 1,85,000 क्यूसेक है। चनियोट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ऊँचे दर्जे का सैलाब है और इस वक्त 4.5 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो चनियोट से गुजर रहा है और पानी की रफ्तार और मिकदार जो है उसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि बड़ा सैलाबी रेला जो है वो आज चनियोट से गुजरेगा। जबकि ज़िले इंतज़ामिया और मुतालिका महकमे जो हैं वो भी हाई अलर्ट हैं और अवाम, अमलाक और जानवरों के महफूज मकामात पर मुंतकली का अमल जो है वो भी जारी है। इसके साथ साथ सरगोदा की तहसील जो कोट मोमिन है उसमें भी इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है। पाक फ़ौज, रेस्क्यू 1122, पुलिस और ज़िली इंतज़ामिया जो है वो मुतहर्रिक है। जी हाँ, नाज़िम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ शादरा में मौजूद हैं और सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं। कश्ती में सवार होकर दरिया में पानी की सतह का जायज़ा ले रही हैं। सूबाई वज़रा भी उनके हमरा हैं और इससे पहले कुछ देर पहले भी जो सीनियर सूबाई वज़ीर हैं उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है पंजाब में दरियाओं की सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। उन्होंने बताया है अब तक 2.25 लाख अफराद, 2.25 लाख मवेशियों को महफूज जगह पर मुंतकिल भी किया गया है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे मौज़मुद्दीन से। मौज़मुद्दीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ एक मरतबा फिर शादरा में मौजूद हैं, सैलाबी सूरत हाल का खुद जायज़ा ले रही हैं, कश्ती में बैठकर पानी की सतह का जायज़ा ले रही हैं। सूबाई वज़रा भी उनके हमरा हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ अब से कुछ देर पहले दरियाए रावी में शादरा के मुकाम पर पहुंची। उन्होंने यहाँ पे आके तमाम तर मामला का जायजा लिया और उसके बाद वज़ीर आला खुद कश्ती में बैठ के इस वक्त दरिया के दौरे पे निकल चुकी हैं और 15 मिनट से ज़ायद हो चुकी हैं वज़ीर आला को कि वो दरिया में काफ़ी आगे तक जा चुकी हैं और उनकी कश्ती अब जहाँ जिस जगह पे हम मौजूद है वहाँ से नजर भी नहीं आ रही है। वो तफसीली दौरा कर रही हैं दरिया का और वैसे मुकामात के ऊपर जा रही हैं जहाँ पे पानी जो है वो आबादी वाले इलाकों में दाखिल हुआ है और वज़ीर आला के हमरा सूबाई वज़रा भी मौजूद हैं और उसके अलावा सूबाई वज़रा ने भी इससे पहले यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि हुकूमत पंजाब जो है वो किसी भी शहरी को तनहा नहीं छोड़ेगी। सैलाबी हाल का तमाम जायजा लिया जा रहा है, तमाम नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। उनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत हैं कि सैलाब के बाद तमाम तर नुकसानात को पंजाब हुकूमत पूरा करेगी। ये नुकसानात आवाम के नहीं बल्कि पंजाब हुकूमत के। उनका कहना था कि पहले से तैयारियां मुकम्मल थी। तीनों दरियाओं में बेक वक्त तारीखी बड़ा सैलाब है लेकिन क्योंकि वज़ीर आला पंजाब और दीगर
महकमों वज़ीर आला पंजाब के हुक्म के ऊपर दीगर महकमों ने तमाम तर तैयारियां पहले ही मुकम्मल की हुई थी। इससे बड़ी तबाही से जो सूबा पंजाब है वो बच गया है और लोगों को महफूज मुकामात के ऊपर उनका जो इंखला था वो यकीनी बनाया गया है। तो वज़ीर आला पंजाब इस वक्त भी दरियाए रावी में शादरा के मुकाम पे और इसमें विजिट कर रही हैं दरिया का। कल भी वो यहाँ पे आई थी, उन्होंने आके मुकाम का यहाँ पे दरियाए रावी में सूरत का जायजा लिया था। कल यहाँ पे 70,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा था, लेकिन आज इस वक्त 1,91,000 क्यूसिक पानी जो है वो दरियाए रावी में शादरा के मुकाम से गुजर रहा है। एक बड़ा रैला है, 38 साल बाद इतना बड़ा सैलाब दरियाए रावी में देखने में सामने आ रहा है। तो बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब मुकम्मल कहते हैं तमाम तर मामलात को जायजा ले रही हैं और वो खुद भी फील्ड में मौजूद हैं। वो तमाम तर मामलात को पहले भी देखती आई हैं। तो पंजाब में जो सैलाबी सूरत हाल है उसका जायजा लेने के लिए वज़ीर आला खुद फील्ड में मौजूद हैं और वो मुख्तलिफ दरियाओं का दौरा भी कर रही हैं। जी ठीक है मौसमुद्दीन, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मौसमुद्दीन, अभी जाते रहते फिर आपसे बात कर लेते हैं, चूँकि देखिए जिस तरह से पानी का फ़्लो हमें इतना ज़्यादा नज़र आ रहा है, जिस तरह पानी का फ़्लो हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और उसी पर बैठकर वो पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रही हैं, देख रही हैं। बज़ाहिर पानी कितना खौफनाक नज़र आता है, लेकिन उसका ये जो जेस्चर है ये बड़ा अच्छा पैगाम भी है उन अवाम के लिए जो मुतासर हुए हैं और दूसरी जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके लिए भी। बिल्कुल, देखिए इस वक्त दरियाए रावी के ऊपर जो पानी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बह रहा है और पानी की रफ्तार जो है ये आम तौर पर जब दरियाए रावी में पानी नहीं होता, लेकिन इस वक्त शदीद तरीन यहाँ पे पानी की रफ्तार है और अगर एक आम शख्स पानी के करीब जाता है तो पानी उसको अपनी तरफ खींचता है काफ़ी देर से। और इस वक्त इस मौके के ऊपर भी रेस्क्यू 112 के जवान भी जो हैं वो भी जब बोट्स में जा रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि बोट्स के ऊपर ज़्यादा लोग सवार भी ना हो, क्योंकि पानी से कश्तियाँ उलट भी सकती हैं। लेकिन इस तरह की सूरत हाल में वज़ीर आला का खुद कश्ती में सवार होकर दरियाए रावी में उतरना और मुख्तलिफ मुकामात का जायजा लेना बिल्कुल साबित करता है कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो पहले दिन से ही अवामी फलाह बहबूद के बारे में सोचती हैं और पंजाब की आवाम जो है वो उनके दिल के करीब है। वो यही चाहती हैं कि तमाम लोग जो इस तरह सैलाब से मुतासिर हुए हैं उनकी मदद की जाए, उनके करीब जाया जाए, उनके गमों का अज़ाला किया जाए। उनका यही कहना है कि किसी को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। पंजाब हुकूमत ठीक है, बहुत शुक्रिया मौसमुद्दीन, आपसे हम इस हवाले से मज़ीद भी तफसीलात लेते रहेंगे।